Yeah, very good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, कैसे हो जी? All good? ठीक हूँ सर, आप कैसा है सर? बढ़िया, good. Thank you. So, shall we start? I think in the previous session we discussed about various other algorithms. Hope you are doing practicals on it. Uh, I'm just looking for your some of the sessions in AI and ML. So, everybody try to complete those sessions. Sir, I tried in Colab, Huh. Google Colab, Okay. and I have completed few programs, sir. And now I Acha. am trying to W3 school, sir. Acha. Very good. Great. So actually क्या है ना आप once you will complete all the course ना, let's say if you follow a W3 schools, so at least you should get some basic idea about all the common algorithms and the patterns, and especially the libraries used in the Python. So once you are through with that, then you can find your sessions given in the IGNU book, and simply you select that topic, and you can easily able to manage and able to process those topics, right? So it's better if you are doing in Colab, that is wonderful part. And even you will get a proper code in your Google Drive as well. So it's good to go, and try your other algorithms as well. Go through with page number 16, 17, and that is on I think in the last session we did SVM, SVR and SVM, right? Yes, sir. We did those algorithms na. So today you can try ANN, that is artificial neural networks, that is also used for data classifications, right? Session number 16, 16, 17. PCA algorithm is very important. Linear discriminant, LDA, that is linear discriminant analysis on data set. PCA, principal component analysis. So these are the very good algorithms. Go with the section 16 and 17. 18 is again good, but that is for even the basic level. A priori algorithms and FP tree algorithms on your data set. So just try these, and I think only K means is again, I think it's not in the sequence, but fine. At least you can try these algorithms, although it is not in the sequence, but that is okay. Uh, that's fine, because you got a topic at least. So my concern is whenever you are doing practice, instead of getting into a lot of sessions and all, you just find which all algorithms being proposed to get implemented, and you just note down those algorithms and keep your codes ready with you in for those algorithms, and at least check with some data set, some basic data set, that how these algorithm performs, and what would be an output, right? So try one by one what is artificial neural networks and all. I'll share the screen. Yeah, I think screen is now shared. See, this is how you can check. We have a artificial neural network, session number 16, 17. 17 is for feed forward neural network. Basically, whenever you are into the neural networks now, there are two major concepts in deep learning. Also we used to study, and neural network especially. So that is feed forward neural network and back propagation. So back propagation has not been mentioned, but at least feed forward neural networks you can try, that how you are going to identify
a particular data set. So it's a wonderful topic if you'll just try. And meanwhile, we'll start with, let's say, what is ANN? So artificial neural network, right? So let's say we'll go with this way. So everybody try in this particular pattern only. Try ANN, okay? And on ANN, what is artificial neural networks, right? In Python. So just try like this, and you will get a proper code. Especially link, this is wonderful site, I would say, mostly being proposed by Indians, basically contributed in this site, that is Geek for Geek. So you can even try this website, how to implement artificial neural network. So what is artificial, what is neurons, what is synapse, right? That is actually trying to synchronize with your brain. This is like how you have, suppose you have a brain, human brain. So what is the functionality of a human brain, right? And can we create a parallel or similar like architecture? So that is why it is a artificial neural network, right? So this is a one of the concept introduced. Give me a minute. So I think if you can explore, you see this is the site. Now if you explore, you'll automatically find uh, a great content with theory. Like in case if you have to write the things in theory, the way how you input your data, and what is the expectation as an output, what are the forward propagation and back propagation, that is what I was talking all about also. See there you have options called forward propagation and back propagation. uh, I think you are not able to see. Yeah, I think now it's there. So you can find like if you got a various input from the various different resources, finally we have to go and get a output, right? After various filters. So just to find the level of accuracy, this is what we are supposed to do. So we have, let's say, lots of input into it, and when we want to predict the output given on the basis of that input data set. So this is what the output is being required. So what would be the output, let's say, for this particular value, the last value, right? So in this way we are supposed to work, and we have to find out by using the methods called forward propagation. Then you have a concept called back propagation, right? And there you will find a proper code for ANN network, artificial neural network. So everybody just pick that code and try to execute your that code into your uh, applications.
Just try, everybody. So there we have a code, python hyphen numpy. So just try to install this library and go with the forward and back propagations. This is the method. Just go through, read once, and then you'll get a code. Copy that code and try to run that code. So you'll get a proper solution that what is the best practice to use your ANN algorithm. There you have a method called neural net. So try that method, that how you will train your data set to the neural network. So neural network dot train. This is the basic method, and the number of input outputs and the combinations, so that further will come to the relevant value and just try to generate the output on that basis. So how many time it iterates, that is how 10,000 time the iteration value is being given, so that finally we'll get almost 98% accuracy, and which is good to go. So this is what it is mentioned, the expected outcome out of it. After 10 iteration, our neural network predicts the value that is 65%. So it looks not good, and the answer should be 1. So we need to increase the number of iteration. That is why from 10 we make it 100, or 100 after that. After 100 we got a 87% accuracy, and then the moment will make it a 10,000% iteration of a neural network model. Out of 10,000 times, then only actually we got a 98% accuracy out of it. So this is the way how you can able to learn neural networks, that how it perform. So everybody try this code, it's a good code. Just try your code. Let's say we'll also run on, I have a Jupyter, so I'll try in Jupyter. See, we got a link. Let me copy that link, and I'll try. Okay, so actually I'm into various other code, so better I'll close all the other codes so that it's quite easy for all of you. This is confusion matrix. Okay, this is DFS, BFS. We discussed about that. We work on KNN, K nearest neighbor. That's what we did. Okay, we were on other projects also, that is conversational AI. But
Okay, so let's come back to ML. There you have your options, right? There we'll create a new book, new notebook, and let's say we'll copy the code. Before we'll copy the code, you need to check whether that library has been installed. So check you have a NumPy, Python NumPy or not, right? In case of Python, we can try with pip also, exclamation pip space install space NumPy. Already, though it is installed, but you can try, is there any library as such? So no library because that is for NumPy is already there. That means so no need to worry about it, right? So let's say we'll try to copy the code and then let's say we'll paste and in this case let's say I'll reduce the iteration value to say 10. Okay, and then we'll make it 1000, 10,000 or so. So shift enter and let's say we'll try see 65%. Once it is the value is 10, the output is there only at the time once you have a 10 iteration, and this is what it is being expected. It's this is what written if we kept the iteration value 10, the output is 65, right? And that's what like we also get the same. And once we'll make it 100, and again if we'll try, so that goes to 87% accuracy. So there it is also mentioned almost 87% once it is 100. And if you want to make it more accurate, let us keep it on 10,000. So what about 1,000? If we'll go with 1,000, that goes to 96%. And if it is 10,000, then only 98%. So you can find the level of accuracy if we want the value and that reach to up to that level. So this is a very basic program, but very good program. You can try how you can assign your neural network. Let me rename this file and make it ANN, right? And because we captured it from yes, let's say we'll take a short link and make it Mockdown. There we go. Yeah, this way you'll get a proper link for ANN, right? So I hope things going good now. You have a ANN, and same way you try to go with the feed forward neural network for data classifications, right? So just try to copy, go to your search. I think now it's quite easy for all of you to do all these things. I hope now you're familiar with all these steps. So
So just type you want the code in Python, feed forward neural network. There you got a, so code is ready with explanation. See, this is how it works. This is actually the concept of neural network, right? That how many inputs are there. According to the input, it goes to the hidden layer and finally you will get the output. That is the best practice, how you can try and get the things done. This is what the output, right? So very quickly the things being assigned. And for this feed forward neural network, what are the applications? So you can go into the image recognition, speech recognition model, or credit scoring, predictive analysis, medical diagnostics, or especially anomaly detection techniques. So we can try, this is again feed forward, that is FNN. So that was ANN, artificial neural network. This is feed neural network, feed forward. And feed forward also goes with a then back propagation. But this is one way. This is all one way. So you have some input. That input is to be segregated into various permutation combination with their different neurons in the hidden layer. So you have a multiple layers, right? So the data goes on to that. And finally, after the the as per the comparison, whatever the best value is being generated, that comes to the output layer. And now this hidden layer is not in a one way, that could be in the multiple layers internally, right? That could be in a multiple layer. So this is feed forward, that means everything is going in the straight forward. But the output generated, now if you find the output and you feel that output is inaccurate, if it is inaccurate, then we have to take it back. So that concept called as back propagation. This is not a back propagation, this is only feed forward propagation. So probably you will get the accuracy or with some error, right? So whatever the output being generated, you have to compare with the actual answer. Let's say I will give you an image. This is a very simple and very good example. Like I'll give you an image, handwritten image, where I write down 7, right? So now my writing, human writing, it's not a standard part, it's a human writing. And suppose there's a number plate of some car, so that is why it is mentioned in the car especially, that you have to keep that font only. Why don't you keep other fonts in the car number plates also? So that they'll able to capture your number, your values from that text. So it's a image or a video. Now whatever the value they'll able to extract, what is the level of accuracy? So the moment you extract, let's say I have an image which is carrying a human writing, let's say 7, and if you'll just go and extract, probably it identified 1, or it identified like 2 sometimes, because the writing, human writing, have very relevant or similar like words. So we need to watch it very carefully. But now we want to train the model, that image recognition model. And how you will do that? So the best practice, you can start with the FNN, and then afterwards you should go with the back propagations also. So there you have a 3 different methods. Out of that, you have to select one of the activation function. These are the internal activation function which works for you. One is sigmoid. It is written like what is sigmoid, or one is tanh, and then is relu. Okay, so 3 different methods which we can try internally by changing their activation functions. So that is nothing but what is the way of activation, how it works. That is, it's a non-linearity into the network, enabling it to learn and the model complex data patterns. So what is uh, forward propagation? What is the loss calculation? Because finally we have to loss some values. What is the loss means? The more accurate we'll keep that, and the less accurate we have to loss, kind of. So the calculation of the loss function, such as mean squared error, that is MSE. आपको एक error calculation का ये method भी है, MSE, that is a mean squared error. For regression task, or cross entropy loss for classification tasks. So कौन सा ज़्यादा classified, कौन सा ज़्यादा nearby है, that is a very important part. And in case if there is an error, then we'll go for the back propagation, because the error is propagated
बैक थ्रू द नेटवर्क, वो डेटा वापस नेटवर्क पे भेजता, अभी एक्यूरेट आंसर नहीं है, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, जो जो हम दोबारा बोलते हैं ना, जस्ट सेंड माई डेटा बैक टू द, बिकॉज देर इज एन एरर, राइट। एंड तब तक ये प्रोसेस करना है, जैसे इटरेशन वैल्यू आपने ANN में देखा है ना, जितना ज्यादा आप इटरेट कर रहे थे उसका एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया। बट इसमें हम बार बार एक्यूरेट नहीं कर रहे हैं, हम तब तक कर रहे हैं डायनेमिकली, है ना, टिल द टाइम दैट एरर एग्जिस्ट we need to go and take our data back to the propagation, so we have to apply that back propagation model in that case, right? The gradient of the loss functions with the respect to each weight is calculated, हर एक का वेट कैलकुलेट होता है, वेट कैलकुलेशन जैसे ये वाला, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका वेट कैलकुलेट होगा, जिसका ज़्यादा वेट होगा वो लेंगे, दूसरे का लीव करते जाएंगे। सो MSC और एंट्रोपीज यूज होती हैं इसमें, ठीक है। सो द वे टू बी गेट एडजस्टेड यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, तो बैकएंड में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगा के वो लोग वेट एडजस्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ठीक रहेगा, इसके आगे बढ़ते हैं। सो द वे यू इनपुट सम इमेज, लेट्स से देयर इज एन इमेज and it goes to the hidden layer to a process to extract the values. The values being extracted in such a way that it's all being combined and correlated with all the multiple parameters, right? And finally the output to be generated. So gradient descent algorithm यूज हो रही है, इसके अंदर भी बैच ग्रेडियंट या स्टोचास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, तो तीन इसके भी डिफरेंट लेयर्स हैं। आप SGD जनरली लगाते हैं, स्टोचास्टिक या बेसिक लगा के चेक कीजिए बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सो यू विल गेट सम वैल्यूज। और जो इवैल्यूएशन होगा, जो आउटपुट आएगा, वो इन पैरामीटर्स में आता है। कौन से, जैसे एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन वैल्यू कितनी है, रिकॉल वैल्यू कितनी है, F1 स्कोर कितना है, और फ्यूजन कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितना है। तो एक्यूरेसी कब आती है? द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस आउट ऑफ द टोटल इंस्टेंस, ठीक है। तो जितने टोटल इंस्टेंस हैं उसमें से आपका जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपका निकला है वो कितना है, वो क्लासिफाइड है या नहीं, तो प्रोपोर्शन ऑफ द करेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज। प्रिसीजन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। आपको पता है ना प्रिसीजन हम कैसे निकालते हैं, है ना, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ द ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शंस टू द टोटल प्रिडिक्शन पॉजिटिव्स। तो जितने टोटल पॉजिटिव पोजीशंस हैं उसमें से ट्रू पॉजिटिव्स, ठीक है ना, वो कितने हैं, तो वो चीज चेक की जाती है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, just give me a minute. Hello, sir. It's audible.
Hello. Yeah. So, yes, I was on this particular part. So just go through with the feed forward neural network. And there you have these major evaluation models. So accuracy is clear, I believe. Then I discuss about precision. तो इसमें precision कैसे निकालते हैं? That is the ratio of the true positive. यानी देखो, ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव, ऐसे ही फॉल्स पॉजिटिव्स भी होंगे. तो ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स दोनों टोटल टोटल प्रिडिक्शन हमें निकालना है. कैसे? द रेशियो ऑफ द ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन टू द टोटल प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स. जितने भी टोटल प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स उसमें नेगेटिव भी तो होंगे ना, फॉल्स पॉजिटिव्स भी होंगे. तो जितने पॉजिटिव्स टोटल निकले अपॉन, मतलब ये हमें निकालना है ट्रू पॉजिटिव वैल्यू अपॉन ऑल प्रेडिक्टिव, टोटल प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स. ठीक है. सो इसके बेसिस पे आपका प्रिसिशन निकलेगा. एंड देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिकॉल, दैट इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्शंस टू द एक्चुअल पॉजिटिव्स. सच में कितने पॉजिटिव्स हैं और जो सच में पॉजिटिव्स हैं आपके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो उससे हम रिकॉल वैल्यू निकालते हैं. एंड फाइनली हमें मिलता है F1 स्कोर. ये प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी निकालने के बाद होता है. दैट इज अ हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल. तो प्रिसीजन रिकॉल जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे F1 स्कोर नहीं निकलेगा. प्रोवाइडिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू. तो प्रिसीजन और रिकॉल का जो एक्चुअल बैलेंस निकलता है वो आता है F1 स्कोर. ये बेसिकली बहुत सारी जगह यूज होता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपका मिनिमम डेटा सेट कितना होना चाहिए. एक्यूरेसी लेवल के लिए भी हम यूज करते हैं, F1 स्कोर निकाल लेते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट you'll get evaluated values of feed forward neural networks and based on confusion matrix. क्योंकि देखो इसके अंदर फाइनली क्या होना है, या तो कुछ ट्रू पॉजिटिव होगा या ट्रू नेगेटिव होगा. यानी जितनी आपने कैलकुलेशंस करी इसमें, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस हुई उसका जो रिजल्ट निकला, अब जो रिजल्ट निकला, जो आउटपुट निकला वो क्या है? या तो ट्रू पॉजिटिव है या ट्रू नेगेटिव है, या फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है. तो उनको कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो मेजर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करा और उसके अंदर जो मेथड्स, ये फंक्शन लगता है आउटपुट जनरेट करने के लिए. कौन सा फंक्शंस यूज है? इनमें से 3 फंक्शंस यूज है. जनरली सिग्मॉइड यूज करते हैं लोग. ठीक है. तो सिग्मॉइड फंक्शन लगाया और उसके बेसिस पे एरर्स को आइडेंटिफाई किया. ठीक है. बैक प्रोपोगेशन होगा, अगर एरर आएंगी तो दोबारा वापस भेजेंगे बैक प्रोपोगेशन पे. ठीक है. और ग्रेडियंट डिसेंट के ये कुछ मेथड्स हैं, यानी इन सब के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको फाइनली ये कुछ वैल्यूज निकालनी होती हैं और उससे हमें पता चलेगा कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है. गॉट इट? इस तरीके से आपको एक लेयर मिलेगी 2D इमेज. लेट्स से कोई आप दे दो इनपुट इनटू 1D. ठीक है. एंड द फ्लैटन लेयर ऑफ टू कन्वर्ट द 2D इमेज इनपुट into a 1D array, and the dense layer with 128 neurons and ReLU activation. इसमें ReLU activation यूज कर रहा है. ठीक है. जिसमें डेंस लेयर कितनी है? 128 न्यूरॉन्स की है. यानी हिडन लेयर्स में समझो 128 न्यूरॉन्स हैं हमारे, और वो आपस में कोरिलेट करवाने 128 को, हर एक के साथ ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव के साथ कोरिलेट करवाना है. ठीक है. एंड द फाइनल डेंस लेयर विद 10 न्यूरॉन्स and softmax activation to output probabilities for each digit class. तो हर क्लास के लिए आपको अलग से उसकी वैल्यूज निकाल के उसके रिजल्ट जनरेट करने हैं. सो द मॉडल इज कंपाइल्ड विद एडम ऑप्टिमाइजर्स और स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस ट्रॉपिकल लॉस फंक्शंस. ये सब इंटरनल फंक्शंस हैं जी. 5 ईपॉक्स चेक करेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए का, 5 बल्कि कम, बहुत सारे करते हैं हम तो. ठीक है. द स्पार्स कैटेगरिकल एक्यूरेसी मैट्रिक्स. तो ये मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे ही आपके सारे प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं. अब कई बार जब हम ये मॉडल में तो डेटा बड़ा छोटा सा ले रहे हैं, जब आपको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए, रियल टाइम आपको ये प्रोसेस चाहिए, तो हम बेसिकली देखो ना एल्गोरिथम कौन सी यूज कर रहे हैं? टेंसर फ्लो. तो टेंसर फ्लो एल्गोरिथम्स को ना, पता है आपको शायद आइडिया हो, आजकल टीपीयू आ गए हैं. आपने सुना होगा सीपीयू, है ना? यू माइट हर्ड अबाउट सीपीयूज, यू माइट हर्ड अबाउट जीपीयू.
There are NPUs are available even in your laptops, NPU. And now there are other type of processors called TPU, and that is only those processor, those hardwares are there for TensorFlow model. So that is a TensorFlow processing unit. TPUs are required. सो जनरली इसीलिए इसमें हाई कंप्यूटेशन पावर चाहिए, क्योंकि इतना सारा हमें इसका प्रोसेसिंग करना होता है. सो फॉर दैट वी नीड अ हाई लेवल कंप्यूटेशन पावर, and we need a TPUs for that if you have a huge data set, large data set, right? And for that we need a TensorFlow algorithms. और टेंसरफ्लो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल कहलाता है. इसके अंदर देखो, इसका जब रिजल्ट निकाला इन्होंने तो इसके 97% एक्यूरेसी बता रहा है कि ये ट्रू पॉजिटिव, हमारा 97% कुछ एक्यूरेसी आ गई. So basically what is this? You just need to try and copy this code. You need a TensorFlow from the Keras. Keras एक लाइब्रेरी है, उसमें उसके साथ आपका TensorFlow and Keras, इन लाइब्रेरीज के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं. और बड़े बड़े जीपीयूज चाहिए होते हैं, राइट? सो ऑन दैट बेसिस सीपीयूज, जीपीयूज, और द बेस्ट प्रैक्टिस इज व्हाई डोंट यू ट्राई टीपीयूज. सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें आप एक हम ट्राई करते हैं. लेट्स से ये कोड ट्राई करते हैं. हालांकि ये बड़ा छोटा सा कोड होगा. एंड लेट्स से विल ट्राई. ये देखो, टेंसर फ्लो इंपोर्ट करना पड़ेगा. यू विल गेट एन एरर, दैट मीन्स द टेंसर फ्लो लाइब्रेरी इज मिसिंग. So you need to download the TensorFlow and then only the code will perform. Got it? What is the reason and why the things are in this way? Okay. So try. See the TensorFlow library. I'm trying to install the TensorFlow library in my data set. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जी? तो थ्योरी पढ़िए. थ्योरी आपको अपने एंड पे आपको आती होगी अच्छे से. उसको पहले एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए ताकि आपको ये सारे स्टेप समझ में आए. प्रैक्टिकल करना तो आसान है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बस एग्जाम में अगर आपके रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, सो दिस इज लाइक हाउ टेक्निकली इंस्टॉल्ड. एंड लेट्स ट्राई दिस देन, है ना? लेट्स ट्राई that whether we get the output. So now you can see it is taking a lot of time to process, and there is no GPU found. It is looking for GPU. You got it? कह रहा है GPU लाओ, ऐसे काम नहीं. couldn't find CUDA ड्राइवर्स. CUDA ड्राइवर्स लगते हैं जब आप GPUs वगैरह के साथ सपोर्ट चाहिए होता है. TensorFlow ports significantly trying to work. There they are trying to see. ये देख रहे हो अंदर इसका नेस्टेड लाइब्रेरीज और मेथड्स को प्रोसेस करने में लगा हुआ है. एंड फाइनल numpy एरर्स हैं. ओके. हाँ, तो लाइब्रेरीज चाहिए. Keras, from Keras, so we need to try with Keras also. एक मिनट, let's see if we can do Keras somehow. अलग से चाहिए क्या Keras? इसको import pandas expected import error. pandas को क्या प्रॉब्लम है? ओके, let's say yes, already installed. हालांकि Keras तो है. एंड fine.
numpy there you will find a code. So array collection में कुछ error है, sparse even you can try there only, but you need to log in once. हाँ, तो ये दो लाइब्रेरीज थी ना, केरास एंड टेंसरफ्लो, है ना. देयर यू विल फाइंड द डेटा सेट. अच्छा, इसको डेटा सेट फेच करना था एज एन इनपुट. वो एक बार ट्राई और करते हैं रन करके. लेट्स सी. ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ठीक है, अब देखते हैं इसको. लाइन नंबर 6, केरास सीक्वेंशियल. import from keras, import sequential में ही एरर आ रहा है. आर वी यूजिंग, हाँ, सीक्वेंशियल मॉडल हम यूज कर रहे हैं ना रेलू के लिए. रेलू एक्टिवेशन मेथड है हमारा एंड वी नीड टू यूज सीक्वेंशियल. सो बेसिकली वो जो एरर था वो उसी के लिए था कि हमें वी नीड हाई एंड मॉडल, बट ये एरर आ रहा है कि हमें टेंसर फ्लो के मॉडल्स ही यूज़ नहीं कर पाएंगे सीक्वेंशियल वाला. लेयर्स आ गया, ऑप्टिमाइजर्स आ गया, एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट एबल टू एक्टिवेट. सो जितने एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उसको इंपोर्ट नहीं कर रहा है ये. उसके लिए मॉडल्स चाहिए सीक्वेंशियल. कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है कुछ. मॉडल सीक्वेंशियल, एक काम करते हैं, हाँ, ये लाइब्रेरी में चैलेंज है. आप लोग अपने एंड पे एक बार लाइब्रेरी डाल के देखना टेंसर फ्लो, क्या ये सेम एरर है या आपका रन हो रहा है. क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे पास वो नहीं है प्रोसेसर्स, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है. Sir, in Colab, it is working well, sir. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू ना, कि क्योंकि कोलैब में तो बैकएंड में वो प्रोसेसर दे देते हैं, इसलिए मैंने कहा आप एक बार अपने एंड पे चेक करो कि हाँ, कोड चेक गलत किया नहीं सर. है. हाँ, कोड क्योंकि ये ठीक है सर, मेथड आ रहा है इंपोर्ट ही सर. नहीं हो रहा है. राइट. कोलाब में आ रहा है सर. आ रहा है ना रिजल्ट. ठीक है, हाँ सर. परफेक्ट. सो यू मस्ट ट्राई इन कोलैब, क्योंकि ऑफलाइन में हमें प्रोसेसर देखा. अब ये समझ में आया प्लेटफॉर्म इश्यूज कब आएंगे, जब आप रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओगे, है ना. और रियल टाइम आपको प्रोसेसर्स चाहिए, जीपीयूस. इसलिए मैंने कहा टेंसर फ्लो आते ही आपको चाहिए टीपीयू प्रोसेसिंग. और टीपीयू में क्या है कि आपको कोलैब में तो मिल ही जाएगा, है ना. सो दैट इज द चैलेंज व्हाई द टेंसर फ्लो एप्लीकेशंस आर नॉट रनिंग इन योर. और ये तो मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसमें रन कर रहा था, है ना. मैं तो कंटेनराइजेशन में प्रोसेस कर रहा हूँ, और मेरा प्रोसेस तो रेगुलर सिंपल सीपीयू है, ना तो कोई जीपीयू है ना टीपीयू है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट एबल टू रन दीज
एप्लीकेशंस। आप कोलैब में रन कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। गुड। यही मैंने कहा ना, मुझे प्रोसेसर की ही दिक्कत लग रही है, क्योंकि कोड का मेथड ही कॉल नहीं कर रहा है। मैं क्यों नहीं कर रहा है, दैट इज अ कंसर्न, क्योंकि मेथड बहुत बड़े मेथड हैं एंड वी नीड टू प्रोसेस दैट डेटा ऑन दोस मेथड्स। तो आप एक बार कोलैब पे चेक कर लीजिए सारे। तो कोड इज़ गुड, कोड में दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की कोशिश की, और वो लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि उसके लाइब्रेरीज मैंने डाल ली है। तो लाइब्रेरी तो इंस्टॉल ठीक से हो गई है, और बट इंपोर्ट नहीं कर रहा। सीक्वेंशियल इसमें मेथड्स, इसको जो मैंने कॉल करना नीचे है ना, बिल्ड द मॉडल ऑन द सीक्वेंशियल, ये देखिए, तो वो सीक्वेंशियल पे ही अटक गया, लाइन 2 पे ही एरर दे रहा है ना, क्योंकि आपके प्रोसेसर्स वैसे होने चाहिए। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपके पास अच्छा प्रोसेसर है तो आपके सिस्टम पे चलेगा, अदरवाइज गूगल के कोलैब पे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी है ना, गूगल है भाई। तो गूगल ने तो अपने सारे प्रोग्रामिंग के लिए टीपीयूज जीपीयू सब लगा के दिए होंगे आपको। गुड। तो और यही सेम एक्यूरेसी आई आपकी 97%। ये सर मैं चेक करता हूँ उसमें। हाँ, आउटपुट देखना, इसका एक्यूरेसी लेवल क्या 97% ही है ना। यस सर 97%। हाँ, वो उनका टेस्टेड आउटपुट है, देखो ना, लिखा ही है पूरा, सब टेस्टेड आउटपुट है। 97388000 वो ऐसा चलेगा, कुछ है। 3 है, बहुत यहाँ पे सारे 6 है, जैसे बहुत वो सारे। आसपास आता है, वो ठीक है, हाँ सर। दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग एक बार ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, व्हाट इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स एंड बैक प्रोपगेशन पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड देन अप्लाई अबाउट पीसीए ज़रूर कीजिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और आगे एल डी ए, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और यार ये सारे ख़त्म कर लीजिए बेसिकली ना, ये वाला पार्ट ख़त्म करें, और आज अगर आपका ये वाला सारा एक बार ओवर हो जाता है, एक बार रन करके कोड अपने पास रेडी करके देख लीजिए, और थ्योरेटिकली एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइएगा। और जब आपका ये ख़त्म हो तो फिर आप वो शुरू, आज मतलब पूरा दिन आप यही कर लें, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत डेंस एल्गोरिथम्स हैं, और इसमें बड़ा कुछ इंटरनल इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, तो आपको एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके कवर कर लो आज सारा दिन में। और कल हमारा जब सेशन होगा ना, तो कल के सेशन में आप लोगों को मेन काम क्या करना है, कल आर लैंग्वेज पे आ जाइएगा। डेटा साइंस आपका जो है उसके अंदर उन्होंने आर लैंग्वेज को बोला हुआ है, सो वी हैव टू डू हैंड्स ऑन विद आर लैंग्वेज एज वेल। तो यही छोटे छोटे लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, या यही एल्गोरिथम्स होंगी जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, इन्हीं एल्गोरिथम्स को हम प्रोसेस करेंगे यूजिंग आर लैंग्वेज। So from tomorrow onwards, we'll do hands-on with our language. But today, I appreciate if you can complete. So you have a whole day, है ना? Today you all have a whole day. So you please go through with all the projects and all these algorithms, and try and understand how it works. So Geek for Geek give you with the explanation, which is the best part. सो यू विल गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। हालांकि और अभी डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको चाहिए, कि अब इसमें भी आपको पता चलेगा अब ये सिग्मॉइड मेथड क्या कर रहा है ना, रेलू क्या कर रहा है, टैनच क्या कर रहा है। तो फॉर दैट यू कैन अगेन गो एंड क्लिक एंड यू कैन फाइंड अ मोर इन डिटेल, राइट। तो ये आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो ये देखिए सिग्मॉइड फंक्शन का पर्पस क्या है, यू विल फाइंड अ सेपरेट सिग्मॉइड फंक्शन विद एक्सप्लेनेशन and with their mathematical terms and their the way how it works and what is the results. So you will get a proper solution that हम जो एक algorithm बना रहे हैं उसके पीछे बहुत सारा mathematical algorithms हैं, and just because of that these methods are running. तो these are the activator, है ना, Euclidean methods हैं, और ऐसे आपके बहुत सारे शेप, what is sigmoid methods and all. तो आप एक बार इसको जब गो थ्रू करेंगे ना, तो मोटा मोटा पहले हमेशा स्टडी कीजिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, हाउ इट बिहेव, हाउ इट वर्क्स,
है ना। इसमें देखो स्लाइड्स दी हुई हैं, ये मोटा मोटा स्लाइड्स के पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आप थ्योरी में भी एटलीस्ट लिख सकते हैं। डायग्राम्स याद कर लीजिए, डायग्राम बना के आएंगे, मोस्टली एग्जामिनर्स आपको डायग्राम देख के ही मार्क्स दे देंगे, है ना। मोटा मोटा नाम याद होगा, दैट वी यूज अ tan h, we use a relu, or we use a sigmoid activation functions. So what is the role of activation functions in neural networks? ठीक है, तो यू कैन गो विद द एक्टिवेशन फंक्शंस एंड यू कैन फाइंड अ सेपरेट एक्टिवेशन फंक्शंस। क्यों चाहिए हमें, ये पूरा एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। देखो इसमें से इतना इनपुट हुआ, इसका सारा नोड में वो सारा, और फाइनल आउटपुट छोटा सा निकाला जो एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा। दिस इज द प्रैक्टिस हाउ द एक्टिवेशन फंक्शंस इन द न्यूरल नेटवर्क इट परफॉर्म्स। तो यही पर्पस है एक्टिवेशन फंक्शंस का इन द न्यूरल, दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाइड टू द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। हमारे पास इनपुट न्यूरॉन्स डालेंगे और हमारा जो आउटपुट न्यूरॉन निकलेगा उसके लिए एक मेथड चाहिए, और वो मेथड कौन से हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस है, ठीक है ना। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू परफॉर्म दीज मेथड्स, सारा एक एक चीज इसकी डिटेल में आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, और ये मेथड कैसे काम करता है थ्योरेटिकली सारी एक्सप्लेनेशन है इसमें। बट इन दैट केस आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड कितना है आई डोंट नो। अगर कहीं पे भी किसी को चैलेंज है मैथमेटिकली या कुछ, तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द नेम्स एंड यू थिंक लाइक दिस इज द बेसिक मॉडल के पर्पस क्या है एक्टिवेशन फंक्शंस का, कि हम मल्टीपल इनपुट्स कर रहे हैं, उनका कुछ वेट होगा, x1 वैल्यू डाली, उसका एक वेट है, लेट्स से वेट w1 है ना, x2 वेट डाला, उसका वेट होगा w2, x3 वैल्यू इनपुट होगी, ये न्यूरॉन्स हैं जैसे, या इनपुट आपके जो वैल्यूज आप डाल रहे हो इनका कुछ वेट होगा। तो z इज इक्वल टू द सबमिशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ wi मल्टीप्लाई बाय xi। तो xi wi, x2 w2, x3 w3, इन सब का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना प्लस b, द बेस वैल्यू इसमें आएगा, जिसके बेसिस पे एक z रिजल्ट निकलेगा, और वो जो निकलेगा दैट इज अ फंक्शन। वो निकालेगा कौन, फंक्शन निकालेगा। तो वी वांट अ एक्टिवेशन फंक्शन जिसमें हम ये वैल्यूज को प्लेस करते हैं, और ये वैल्यूज को प्लेस करने के बाद नोड में से द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी आपको आउटपुट में मिलती है, दैट इज अ फंक्शन z, विच इज नथिंग कंसिडर एज एन आउटपुट। तो इन अदर वे मोटा मोटी बात क्या हुई, आपने कुछ कंटेंट डाला, कंटेंट का कुछ वेट था, कुछ वैल्यूज थी, और उसमें से हम कह रहे बता कौन सा वैल्यू है, प्रिडिक्ट कर। सो यू आर टॉकिंग फॉर द प्रिडिक्शन, है ना। एक्यूरेसी बता, और जो आपने रिजल्ट निकाला, आउटपुट निकाला, उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, है ना। भाई आपने अगर वैल्यू बोला, मैंने दिखाया आपको एप्पल की इमेज, और आप कहते हो ए फॉर एप्पल है, तो यू विल से ना कि नहीं दिस इज एक्यूरेट आंसर, है ना। बट अगर मैंने आपको एप्पल दिखाया और वो कहता है नहीं ये तो बी फॉर बॉल है, तो आप कहोगे अरे रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स, है ना, यू हैव द एक्यूरेट आंसर्स। एज अ ह्यूमन वी नो व्हाट इज द एक्यूरेट आंसर, बट वी वांट टू ट्रेन आवर डेटा सेट, वी वांट टू ट्रेन आवर मशीन कि भैया इसको देख ले ध्यान से, इसके सारे पैरामीटर्स चेक कर ले, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इनपुट आउटपुट, इसका वेट, इसका हर इनपुट वैल्यूज को क्रॉस चेक कर ले। जो आउटपुट आपने जनरेट किया है ना, एक्टिवेशन, 3 एक्टिवेशन फंक्शंस में से जो आउटपुट आपने जनरेट किया, वो अगर तो एक्यूरेट आ गया और आंसर ठीक है, तो विल एक्सेप्ट ओके दिस इज करेक्ट। बट सो दैट इज अ फॉरवर्ड FNN वाला कॉन्सेप्ट है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है वो, है ना, देन इट इज अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। बट अगर एरर आया और वो कहता है नहीं ये तो मुझे पता नहीं एप्पल भी नहीं लग रहा है, ये तो बॉल लग रहा है ना, इमेज आपने दिया रेड एप्पल का, और वो कहता है नहीं ये तो एक बॉल है, तो वो बॉल उसे कंसिडर कर रहा है क्योंकि उसका मैक्सिमम डायमेंशंस किधर है, दैट इज समवेयर सराउंडेड, है ना, समवेयर सराउंडेड। बट एज यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन से इट इज एन एप्पल। बॉल तो 100% सर्कुलर होती है, एप्पल इज नॉट 100% सर्कुलर, उसका 80% जेन्युइन आ रहा है कि सर्कल टाइप लग रहा है एप्पल, बट उसके शेप्स हैं, एंड दैट इज नॉट अ बॉल। सो इन दैट केस इट इज एन एरर, वो MSC एल्गोरिथम्स का प्रोसेस होगा, है ना। और फिर हम ऐसे आउटपुट को दोबारा से बैक प्रोपोगेशन करते हैं, दोबारा से डेटा इसी एक्टिवेशन मेथड्स में डाल देते हैं, फिर से उसको ग्राइंड करवाते हैं, फिर से कहते हैं दोबारा एक्यूरेसी निकाल के दिखा, दोबारा एक्यूरेसी निकाल,
तो वो उसमें भी उसे पता चल जाता है कि मैन दैट मीन्स दिस इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू. Then they again try to process that method, correlate with all the neurons and their input values with their weight, and cross check करता है, और क्रॉस चेक करके आपको फिर से एक रिजल्ट जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा. और ये तब तक प्रोसेस करो बैक प्रोपोगेशन जब तक एक्यूरेट वैल्यू ना दे दे, विद हाई एक्यूरेसी. विद हाई एक्यूरेसी वी वांट टू ट्रेन देम. जैसे ये इमेज आएगी ऐसा शेप होगा, ऐसे एंगल होगा, ये उसके डायमेंशंस होंगे. बेस्ड ऑन दैट दिस ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर एज एन एप्पल, राइट. तो जब ये चीज होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से, आप 20 एप्पल की फोटो दिखाओ उसको. अब आप जैसे मल्टीपल वैल्यूज उसको देते जाओगे, वो उसको 2D को 1D में कन्वर्ट करता है, उसके डायमेंशंस निकालता है, उसके इनपुट्स निकालता है इमेज में से, उसकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर फाइनली आपको बता देगा कि ये क्या रिजल्ट है. दिस कंसेप्ट इज अ न्यूरल नेटवर्क. दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखो ये उल्टा लिखा हुआ है हमारे इसमें, मुझे ये लगता है. बेसिकली पता है क्यों लिखा है? एक्चुअली ये ना तो एआई है ना ये एमएल है. ये एक्चुअली एमएल के भी अंदर एक नेस्टेड लेयर है विच इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क. डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये. सो दैट इज वाई इसको कहीं ना कहीं इन्होंने एमएल में ही डाला है. दिस इज अ पार्ट ऑफ एमएल, फाइन, बट दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स. ओके. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रियल टाइम जो बैकबोन है, जो रियल टाइम कोर रिजल्ट्स जनरेट करता है, दैट इज योर डीप न्यूरल नेटवर्क्स टू फाइंड द लेवल ऑफ एक्यूरेसी. और तब तक करते जाओ. सो आपको मेन सीधा एल्गोरिथम ही तो याद रखना है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, और अगर कहीं एरर है तो उसका बैक प्रोपोगेशन, और वो तब तक निकालो जब तक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती. तो बीच में ना आपका कोड का काम कम हो जाएगा. आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो एक्यूरेसी लेवल निकालने का जो मॉडल है, वो एक बेस्ट मॉडल बन के आपके सामने आ जाएगा. एंड इन दैट केस whatever the data set you introduce to your models, the same code, है ना, on the same code it generates the results on that basis. तो आपको अपनी मशीन को ट्रेंड करवाना है. क्यों एआई आपका, मतलब आप एक दिमाग बना रहे हो, आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हो आप. दिस इज द कंसेप्ट. कैन वी मेक अ आर्टिफिशियल ब्रेन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? और ये सारा क्या न्यूरल नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग इसको, है ना, मिमिक किया गया है ना. डुप्लीकेट कहते हैं ना, कॉपी बनाया जाता है, मिमिक्री करते हैं ना जैसे. तो ये इट इज अ वे ऑफ मिमिक मॉडल ऑफ अ ब्रेन, दैट हाउ आवर ब्रेन परफॉर्म्स. आपको अगर कोई इमेज दिखाते हैं और आप उससे आपको आउटपुट मांगते हैं ना, आपको दिखाते हैं व्हाट इज दिस, बच्चे को, छोटे किड्स को दिखाते हैं ना हम लोग कि बेटा व्हाट इज दिस, तो वो कहता है ये दिस इज बॉल, दिस इज एप्पल. तो वो उसके ब्रेन में क्या चलता होगा, उसको मैथमेटिकली प्रोसेस किया गया, है ना. एंड ऑन दैट बेसिस वी गॉट अ कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. सो दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन, है ना, is to be converted in the form of the concept of neural networks. तो हम लोग ब्रेन बना रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन रेडी कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे जैसे आप करते जाओगे ट्रेंड, आई थिंक आपको पता चल जाएगा. इसका रियल एग्जाम्पल्स देखना है तो आप मूवीज देख सकते हो, बड़ी सारी मूवीज हैं बाहर, है ना, आजकल. वो अभी एक पीछे कौन सी एक मूवी थी, आई होप यू हैव मस्ट हैव सीन, जैसे रोबोट 2.0 आपने देखी होगी. अभी वो एक और मूवी थी, दैट टॉल गर्ल, सेलिब्रिटी कौन है आई डोंट नो. उसमें वो था ना कि वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल एक रोबोट बना दिया, दैट इज अ गर्ल, एंड एक्चुअली इट्स अ गर्ल. वो उसमें वो क्लिक करता है, उसके स्टमक बाहर आता है, एंड दैट द सेम प्रोडक्ट वाज देयर. इट सीम्स टू बी दैट शी इज ट्राइंग टू च्यू your food, but it is not, it is actually dropped in the basket over there. Some that kind of one movie was there. I don't know what the name of that movie. You must find it out. Uh, this guy, क्या नाम है इसका? uh, even I am not good in movies and their names here. So probably you must be more good in that. But I have seen that movie. Though that was quite interesting. That how human robots and artificial intelligence robots are about to come in our day-to-day life. आने वाले टाइम में आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि whether it's a human or a robot.
So how these robots are working, है ना? So how वो उसमें वो उनका सारा वो सब every job is to be considered and all that. So try and understand. उसमें एक old वो lady थी, company head, she was I think Dimple Kapadia, that old lady, and this new guys, I don't know their names, celebrities. So that was a good movie which you might have seen. It's a family drama sort of, है ना? But the purpose to show that what is the technology and how the technology is actually getting into your life in a day-to-day life. So how the technology learned that model, and in case of any disaster or any if and buts, any one single the bug is there or the error being adapted by your neural networks, it creates a disaster for you. So that is also a big problem. We should give a command to the devices rather than device should learn by their own. और ये बैक प्रोपोगेशन मतलब वो लोग मूवी देख रहे थे और मैं इसके अंदर मेरे को लग रहा था अरे इसने फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन किया, इसका ये आउटपुट जो है गलत आया, और ये जो रॉन्ग एरर है इसको एमएससी एल्गोरिथम्स में डाला और उसको जो है इसमें प्रोसेस कर. सो यू कैन लर्न लाइक दिस. सो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी और मेरे ब्रेन में मेरे पास ये एल्गोरिथम्स माइंड में चल रहे थे कि ये ऐसा इसका रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ होगा. एंड हाउ means in that at the last they were trying to show that these robots are going to get some emotions. They're learning how to gain the emotions by using the same model. क्योंकि आपने उनको डायरेक्शन दे दी ना कि जब तक एक्यूरेट नहीं होगा. एक्यूरेट कब होगा? व्हाट आर द पैरामीटर्स टू फाइंड द एक्यूरेसीज? सो एक्यूरेसी निकालने के लिए आप खुद ही तो ट्रेंड कर रहे हो भैया, इसको इस तरीके से करते जाना, बैक प्रोपोगेट करते जाना जब तक एक्यूरेट वैल्यू ना आ जाए. ठीक है. सो बेसिकली they are trying to extract the human face, human emotions, their gestures, their accent, the way the behavior the person speaks, everything. And on that basis they'll find what is the best result required by that person, and they try to perform on that. And that is a wonderful one a movie drama being shown in multiple movies these days. So try and understand ये न्यूरल नेटवर्क्स का ही रोल है. सारा रोल किसका? न्यूरल नेटवर्क्स का. एक आप देख सकते हो ऑनलाइन एक न्यूज भी थी दैट अभी couple of years back, in fact the Facebook, two servers of the Facebook who were trained with this data collection and data creation model, right? Two Facebook servers was started interacting with each another. वो आपस में दो सर्वर्स ने इंटरेक्शन शुरू कर दिया, and they generated a data in a such a way that all the team were in panic, and finally they pull their power cables, right? They pull their power cables and they stop their servers there and then, because वो खुद ही अपने आप को ट्रेनिंग देने लग गए हैं, है ना? अपने आप ही एक प्रोफेसर बन रहा है, दूसरा अपने आप स्टूडेंट बन रहा है, स्टूडेंट प्रोफेसर बन रहा है, एंड दे ऑल आर इंटरेक्टिंग एंड गेनिंग न्यू डेटा एंड जनरेटिंग न्यू डेटा एंड फाइंडिंग द लेवल ऑफ एक्यूरेसी बेस्ड ऑन सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस. सो चैलेंज कहाँ है? चैलेंज ये है कि आने वाले टाइम में अगर वो कहते हैं ना, सो वी नीड एथिकल कोड्स, द कोड ऑफ एथिक्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम वंस यू आर गोइंग टू. तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स हैं जहां आप फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, दैट इज फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, है ना, और न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, या बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके आप कुछ लेवल ऑफ एक्यूरेसी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज अ सैंपल कोड, सैंपल मेथड्स. दैट इज व्हाई आई सेड ट्राई टू यूज दिस मेथड. इसकी पावर बहुत सारी है. मैथ्स आपको अच्छे आता नहीं आता कोई बात नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टेप, व्हाट इज द प्रोसीजर, and you need to learn this is the code. Let's say we have a code, so you need to learn what is the purpose of this code. You need to load your data set.
सो आर यू रियली गोइंग टू लोड योर डेटा सेट एंड योर ट्रेनिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स? ये तो हम मशीन लर्निंग में हमेशा करते हैं. कैन वी एबल टू बिल्ड अ मॉडल? तो जो मॉडल बनाना है, आपको पता है हर बार हम एक मॉडल बनाते हैं, वो रेग्रेशन मॉडल हो या कोई भी एल्गोरिथम आपने यूज किया हो, सो वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल. उस मॉडल में हम क्या करें, इनपुट एक शेप दे रहे हैं, कितनी 28 बाय 28 पिक्सल्स की एक शेप दे रहे हो आप. Let's say you have a one pixel, one image where it is xy coordinate क्या 28 by 28 पिक्सल की एक फ्लैटन इमेज दे रहे हो. तो आपकी एक इमेज है जिसके अंदर आपने कुछ वर्ड, कुछ कलर, व्हाइट इमेज बैकग्राउंड में, और लेट्स से ब्लैक पेंसिल से आपने लिख दिया 7 या 8. यू हैव टू टेक सिमिलर लाइक दैट काइंड ऑफ इमेज, राइट, विच इज टू बी कंसिडर एज एन इनपुट, और वो फ्लैटन इमेज होगा, और उसके ऊपर उसकी डेंस क्वालिटी को इन्होंने चेक करे बाय 128 पिक्सल्स, एंड एक्टिवेशन मेथड कौन सा लगा रहे हैं, रेलू, और उससे जो है एक एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स करके डेंस उसका ये रिजल्ट्स को प्रोसेस करेगा. कौन करेगा? सीक्वेंशियल मेथड. और सीक्वेंशियल मेथड के लिए ये आपने टेंसर फ्लो से इसको कॉल कर लिया. So basically all what you need to do, you need to learn what are the stages. How to write, you will find the code. Code is always there with you. Aaj code writing is not a difficult task. Understood? Code writing is not a difficult task at all. You can easily get the code, and there is 100% accuracy with that code. If there is a problem, that problem could be in your system or in your way to perform. So code is already tested code. Only the problem is with this, like, are you aware of what are the stages? So please try and create your life cycle for working any AI or ML models, and what would be the stages. इसको आप एल्गोरिथम के फॉर्म में भी लिख के आएंगे ना, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे. Are you getting my point? So this is the best practice where you load your data set. Second, build your model. In that building model, we use a sequential model. We are going to place some input with the dense method and activation methods, ReLU and softmax. And this is what is being defined. And on that basis, we are trying to compile the model. Further, once we compile the model, we'll get the loss and the matrix, optimizer Adam, right? And finally, whatever the model being compiled, let us go and train the model. After training, we'll try to evaluate the model. बस ये stages याद हो जाएंगे, और उससे related कौन सा method और क्या क्या value, और उसके according आपको result मिल जाएगा. So then it becomes very easy to remember. Understood how you have to learn all these things? Otherwise, so, and if you are really good in some core technology, so at least you should learn and you should get into it, right? And you must get into it in a proper way and learn the things on that basis. हो जाएगा, सब process होगा. और फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप मेमोराइज भी कर सकोगे, प्रैक्टिकली इसको प्रोसीड कर सकेंगे आप. Is that clear? So for today, I think you all start practicing about the model, like what is to be taken care of. So you have to go with feed forward propagation, I think quite clear. Then you go with say principal component analysis, LDL, linear discriminant analysis, and you have various other algorithms, a priori, FP tree growth algorithm, K-mean, DB scan. So today I really appreciate everybody should complete this part. आज आप लोग सब ये practicals पूरा कर लीजिए. Still you face any inconvenience, so let me know. I'll help you in some either way if you want any support. Otherwise, the code is already available to all of you. You can try and learn the concept, what is there. So it's better today you just complete this part, and from tomorrow we will proceed with the concepts of data science using R language. तो आपके कोर्स में R लैंग्वेज भी है, ठीक है? तो आज आप ये प्लीज सारा खत्म करें. एवरीबडी, you please complete that part. This is a most intensive model,
It's a dense and intensive model where you have to do a lot of explanation. See, this is how, what is the input value, what are their weights to be calculated, and final output being generated. This is how it works. So everybody go through step by step. Still you face any inconvenience, let me know, will work out. ठीक है जी? Is that clear? So everybody please start practicing. All right, so I think now you can start.